Hey guys, welcome back to the channel. Today, this is the second video from the list of new companies which are going to list shortly in the stock exchanges. So this company is Travel Food Service Limited. If you look at their business model इसका समझ लेते हैं पहले तो ये तीन वर्टिकल्स में बेस्ड है. The first one is the travel quick service restaurant, the second one is the lounge services and the third one is the management services. Now ये लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली एक QSR सेगमेंट की कंपनी है. थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर QSR कंपनीज. तो दे बेसिकली सेल द फूड एंड बेवरेजेस through QSR and lounge services. Predominantly, they operate in the Indian airports and international markets and highway locations. नाउ इफ यू लुक एट द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बेसिकली, तो इनके पास इन हाउस ब्रांड्स भी ये लोग एंडोर्स करते हैं. ऑलमोस्ट दे हैव 127 ब्रांड्स एंड they also sell the partner brands from KFC, Pizza Hut and Subway and Idli.com, etc., etc., and they earn the revenue based upon the royalty which they get on the sale of those products. So this is all about quick service restaurant. Then lounge services में ये लोग क्या करते हैं, they operate in the domestic and international airports. They partner with the various launch partners जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस होती है, कार्ड नेटवर्क्स होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स, देन लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स के साथ ये लोग they collaborate and they operate the lounge services. They charge these customers on the monthly or bi-monthly basis, and they also serve the walk-in customers. So they have almost around 37 lounges in India. 37 lounges total, of which 28 are in India and 9 in overseas. The third one is it's like management. They manage the various operations for the joint ventures and the services for their partners. तो उसके basis पे जितना भी revenue कमाते हैं, that is around 4%. So that is very small operating segment. Now if you look at the QSR, तो उसका ऑलमोस्ट 51% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द QSR एंड 45% कम्स फ्रॉम द लाउंज सर्विसेज. So QSR is around 872 crores and lounge services around 758 crores. So let's talk more about these two segments. Now in QSR, if I have to bifurcate this 872 crores, 55% is coming from the sale of the partner products एंड इन हाउस प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो 45%. ठीक है, ये है इनका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल. तो आई होप ये बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा. वेरी सिंपल. नाउ इफ यू लुक एट द डेट टू इक्विटी हियर, इट्स अराउंड 0.8%, क्योंकि इनका जो इक्विटी है वो है अराउंड 1070 करोड़ का डेट ले रखा है. 901 करोड़ का, तो पॉइंट एट का डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है, विच इज लिटिल हाई. दैट इज वन कंसर्न. CFO आर कैश पॉजिटिव, ये अच्छी बात है यहाँ पे. सो इट गिव्स अ कुशन बेसिकली. जो डेट टू इक्विटी रेशियो ये बढ़ा हुआ है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मोर व्हाई दिस डेट टू इक्विटी रेशियो इज इंक्रीजिंग. दैट यू हैव टू रीड मोर ऑन दिस. Now, let's look at the financials. यहाँ पे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं. इफ यू लुक एट, मैंने यहाँ पे ना FY23, FY24 एंड FY25 का सेल्स कितना था वो लगा. तो FY22 में अराउंड सेल्स थे 370 crore, समथिंग लाइक दैट. एंड इफ यू लुक एट FY23, तो वो बढ़ गए सीधा 174% का स्टैगरिंग ग्रोथ. ऑलमोस्ट अराउंड 1000 करोड़ का रेवेन्यू इन लोगों ने FY23 में किया था. देन उसके बाद क्या है ना, थोड़ा पेस ऑफ ग्रोथ इज 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 यू नो स्लो डाउन हो गया. तो FY24 में 1300 करोड़ का रेवेन्यू, 1400 करोड़ का रेवेन्यू. देन FY25 में 1600, 1650 करोड़ का, 1700 करोड़ का रेवेन्यू किया है. तो अगर आप पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो 174 करोड़ से सीधा वो 21% में आ गया है. ठीक है, तो दैट इज वन कंसर्न कि ये पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है. ओके. नाउ if you look at EBITDA margin also, तो EBITDA margin is kind of sustained basically. तो 42.90% था in FY23, which is sustained to the almost 40%. तो थोड़ा सा डिप था FY24 में, वो थोड़ा सा अप हो गया है, which is 40%. Now if you look at the PAT margin भी almost अभी पहले 22% हुआ करता था, वो 20% से जाके अभी 22% पे वो सस्टेन हो रहा है. So that is good thing. So there was dip in FY24. Now it is, इफ यू कंपेयर ईयर ऑन ईयर, तो थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे तो दिख रहा है. सो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट,
we are looking at a company which is growing at 21% with a EBITDA margin of 40% and PAT margin of 21%. Now, if we look and check the EBITDA margins and PAT margins of the competitors, you will understand the story well. Okay, now what is the offer basically? The promoters are selling their percentage, like I think around 14% ऑफ द स्टेक दे आर सेलिंग. तो वो अराउंड 2000 करोड़ का जो वैल्यूएशन आ रहा है, प्रमोटर 2000 करोड़ का शेयर्स बेच रहा है. वो कंपनी को इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो सब प्रमोटर लेके जाने वाला है. 2000 करोड़ का क्या करेगा, आई डोंट नो दैट. ऑल राइट, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. तो कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो अराउंड, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अराउंड 13 करोड़ के शेयर्स है कंपनी के पास, राइट. उसमें से अराउंड 1.8 करोड़ प्रमोटर बेच रहे हैं. और प्राइस बैंड है अराउंड 1000 से 1100 करोड़ का. तो 1100 करोड़ का मैंने हाईएस्ट लेवल का पकड़ा है यहाँ पे. तो टोटल मार्केट कैप कंपनी का जो आता है वो आता है 14,000 करोड़, 14,300 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे आता है. ठीक है. अब ये सब शेयर्स बेच के भी प्रमोटर होल्डिंग, टोटल प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की रहती है 86%. अब इनको वो 75% करना पड़ेगा आगे जाके. तो लॉक इन पीरियड जो है वो कंपनी का है 18 मंथ्स. अभी 18 मंथ्स के बाद फिर से ये लोग शेयर्स बेचेंगे. ठीक है. दैट इज मोटा मोटी स्टोरी ऑफ दिस वन. अब क्वेश्चन है कि ये जो 14,000 करोड़ का जो मार्केट कैप कंपनी ला रही है आईपीओ में, वेदर दिस इज ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, क्या है ये चीज़, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है. ठीक है. तो बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया. देन वी अंडरस्टूड द फाइनेंशियल्स, एवरीथिंग, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूएशन. तो वैल्यूएशन यहाँ पे समझना इतना आसान नहीं है, जो आईपीओ कंपनीज होती है बेसिकली, क्योंकि ये लोग कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है. तो आप फ्यूचर में कैसे देखोगे इसको. ठीक है. क्योंकि वैल्यूएशन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, इट हैज टू बी लुक फ्रॉम द फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव. नाउ यहाँ पे कंपटीशन क्या है, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है इस कंपनी के, वो कौन है. एचएमएस होस्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एनकाल हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड. नाउ हाउ दिस कंपनी स्टैक्स अगेंस्ट दिस कॉम्पिटिटर्स वो थोड़ा देखते हैं. तो इफ आई कंबाइन द मार्केट शेयर ऑफ टीएफएल, एचएमएस एंड एनकाल, तो टोटल मार्केट शेयर तीनों मिला के 50% मार्केट शेयर बनाते हैं. ठीक है, ये जो पूरे बिजनेस का. नाउ इफ यू कंपेयर तो क्यूएसआर और लाउंजेस जो है ये सेगमेंट में, टीएफएल के पास अराउंड 384 क्यूएसआर हैं एंड 37 लाउंजेस हैं, वेयर एचएमएस के पास 49 क्यूएसआर है एंड इनका के पास 37 क्यूएसआर है. ठीक है. सो अब मोटा मोटी देखा जाए तो टीएफएल इज द मार्केट लीडर हियर बेसिकली. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. नाउ इफ यू कंपेयर दिस विथ हाई स्ट्रीट क्यूएसआर प्लेयर्स लाइक जुबिलेंट फूडवर्क्स विच इज आपका डोमिनोज एंड देवयानी एंड सफायर, वेस्ट लाइफ, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, मतलब बर्गर किंग हो गया, फिर ये आपका वेस्ट लाइफ इज योर आई थिंक आपका जो बर्गर वाला ही ब्रांड है, मैं भूल रहा हूँ, मैं मैकडी आई थिंक, यस. देन केएफसी हो गया, ये सब जो कंपनीज है ना बेसिकली. If you look at their market cap, तो Jubilant is the highest market cap वाला कंपनी which is around 46,000 करोड़ का market cap है यहाँ पे, followed by Devyani and then Westlife and then Sapphire and then in the end Restaurant Brands Asia. ठीक है. तो ये है स्टोरी यहाँ पे. तो इनका सेल्स ग्रोथ क्या है, तो जुबिलेंट का सेल्स ग्रोथ अराउंड 33% एंड देन फॉलोड बाय ये सब कंपनीज है विच इज अराउंड लेस देन 15%, देन 12%, देन 7% एंड देन लास्ट रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया विच इज 6%. तो अब आप बोलोगे कि यार जुबिलेंट में तो अच्छा खासा ग्रोथ है, 33% का ग्रोथ है, बट टीएफएल इज 21%. बट नाउ यू टू लुक एट मोर दैट जुबिलेंट में कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है. विस टीएफएल हैज एन ऑपरेटिंग लेवरेज हियर. तो वो एक अच्छी बात यहाँ पे है. दैट आई लाइक मोर अबाउट दिस कंपनी टीएफएल बिकॉज दे आर एबल टू सस्टेन the EBITDA margin, they're able to maintain the PAT margin. Perhaps they're growing north of what they did in FY24. That is very important thing for me, and that we'd like to track about that company because इन सब कंपनीज में ये क्यूएसआर पता है आपको, ये कोई ग्रोइंग सेगमेंट नहीं है. ये जो चार कंपनीज के बारे में बोल रहा हूँ मैं, चार पांच कंपनीज के बारे में, ये दे टुक अ हिट बेसिकली and no one is performing well. So from that angle, TFL looks good.
व्हाट इज द रिस्क इन द टीएफएल, दैट द ये जो इनका बिजनेस है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ये मेजरली ये लाउंज जो है, लाउंज में ऑपरेट करते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप विद द पार्टनर्स लाइक एयरलाइन, कार्ड नेटवर्क और ये सब जो है। अब इनके साथ अगर रिलेशन खराब हो गया तो बिजनेस भी जाता है, राइट? फेलियर टू रिटेन और अट्रैक्ट द न्यू पार्टनर्स definitely could attract the impact, could impact the business basically. So that's a risk associated with the launch services. Now coming to the valuation exercise, ये जो मैंने FY 23 24 और 25 के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ एंड पैट मार्जिन और पैट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगर हम लोग देखते हैं FY 25 में, दे डिड अराउंड पैट ऑफ अराउंड 363 crores, और जो मार्केट कैप विच कंपनी इज प्रोजेक्टिंग विच इज अराउंड 14,000 crores वाला मार्केट कैप, उस पे फॉरवर्ड पी, उस पे पी आता है, जो करंट पी विच इज द लिस्टिंग पी इज अराउंड 39। सो द पी मल्टीपल ऑफ 39 में ये प्राइसिंग अभी चल रही है। बट if they maintain this growth momentum, which you need to track basically, if they increase the guidance from 21%, so let's say 25% or 30%, देन यहाँ पे ट्रैक्शन बढ़ेगा एंड देन द स्टॉक विल, यहाँ पे प्रेशर आएगा और वो स्टॉक भागेगा। ठीक है, ये एक एक पॉसिबिलिटी है। इफ दे डाउनग्रेड दिस गाइडेंस, डेफिनेटली दे विल टेक अ हिट एंड ये नीचे जा सकता है। तो अगर ये 20% का भी मार्जिन मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल 20% का सेल्स ग्रोथ मेंटेन करते हैं एंड पैट मार्जिन इज अराउंड 21%, then the PAT comes around 425 crores, like on the sales of around 2000 crores, and the forward P comes out to be 33. Still the stock is not it's not मतलब ज़्यादा overvalued नहीं, it's reasonably valued I would say, because if I compare the market cap 14,000 crore versus 46,000 crores का market cap ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क का जो है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो मुझे मुझे तो ठीक ही लगता है, राइट। तो it's not that overvalued, it's not that undervalued, it's kind of reasonably valued stock I would say. But you need to track this company. It's not like it's not a buy and sell recommend. This is just the analysis of the draft red herring prospectus and analysis of the red herring prospectus। ठीक है, ये जो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक एक चीज नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों का एनालिसिस करके ये मैंने यहाँ पे ये आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है। होप आपको ये समझ में आया है। अगर ये समझ में आया होगा, अगर आपको इसमें से कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू नॉट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नॉलेज इन योर कम्युनिटी, राइट? दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टू योर सेल्फ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।